ادھر دیکھیں جی، ادھر دیکھیں ذرا بھائی، ادھر دیکھیں بھائی، ادھر سامنے دیکھیں، ادھر دیکھیں بھائی، ادھر دیکھیں ذرا، ادھر دیکھیں ذرا بھائی، ادھر بھی دیکھ لیں، ادھر بھی دیکھیں بھائی، آپ بھی ذرا ادھر دیکھیں بھائی، ادھر دیکھیں جی، ادھر دیکھیں بھائی، ادھر دیکھیں اور فوکس کو بچائیں گے بیٹے یہ ڈائش اوپر رکھ دیں، یہ ڈائش اوپر رکھ دیں آپ۔ کلام کے لیے خدا کے بندہ پاسٹر عرفان نذیر کو بلاؤں گا کہ وہ دعا میں رہنمائی کریں۔ وہ کلام جو زندگیاں بدلتا ہے وہ مانگیں اپنے لیے۔ خدا ان آسمانی باپ یسوع مسیح کے قدرت والے نام میں تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو عظیم ہے، تو بھلا ہے، تو چنگا ہے، تو لا تبدیل ہے، وعدوں کا سچا ہے، محکم کلا ہے، ہمارا برج ہے، ہماری چٹان ہے، ہمارے چھپنے کی تھا ہے۔ ہم تیرے نام کو جلال دیتے ہیں، ہم تیری عزت کرتے ہیں، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آج خدا باپ یہاں اکٹھے ہو کر تیرے نام کو جلال دیا ہے۔ ہم بولتے رہے، تو سنتا رہا ہے۔ اے باپ، تیرے کلام میں لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ تیرے خادم کو یسوع کے لہو میں چھپاتا ہوں، اس کلیسیا کو بلے کے لہو میں چھپاتا ہوں۔ آج جب تیرا خادم تیرے کلام کی منادی کرے، وہ نہ بولے، تیرا روح القدس اس میں جنبش کرے۔ خداوند، تو نے اپنے کلام کو اپنے ہر ایک نام سے زیادہ عزت دی ہے، عظمت دی ہے، تعظیم تیرے کلام کی ہے۔ جب جب تیرا کلام آیا ہے، حالات بدلے ہیں، زندگیاں بدلی ہیں، پانچ بن جاتا رہا ہے۔ آج بھی تیرا کلام اثر دکھا کے جائے گا میرے باپ۔ یسوع نام میں جب تک تیرا خادم بولے، اس کے ہونٹوں کا ذمہ لے، مدد فرما، رہنمائی کر۔ اور آج ہم کامل ایمان رکھتے ہیں، یہ گھرانہ، یہ کلیسیا، یہ لوگ تیرے کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ خدا قدوس فرما، ہم سنتے ہیں۔ آسمانی باپ، ہمارے کانوں کو مسا کر، دلوں کو پاک کر، ہمارے خیالات، ہماری سوچیں یسوع نام میں تیرے کلام کے وسیلہ سے آج پاک ہوں۔ اور خدا قدوس، میں دعا گو ہوں تیرے بندہ کے لیے، یسوع نام میں اس کو کثرت سے استعمال کر۔ آسمانی باپ، منت ہے آج تیرے کلام کے وعدے پورے ہوں گے کہ تو اپنا کلام نازل فرما کر شفا دیتا ہے۔ آج بہت سی زندگیاں برکت پائیں گی اور تیرے جلال میں آگے بڑھیں گی۔ یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں۔ شکریہ بھائی صاحب۔ کلام کے لیے آپ کی تعلیم میں بلاتا ہوں پاسٹر شفقت بھٹی۔ شفقت کو زوردار تعلیم میں خدا کے کلام کو اور خادم کو ہم ویلکم کرتے ہیں۔ ہلیلویا۔ اتنی سمجھ کے ساتھ پاک پرستش کی ہے، اور پرستش جو ہے یہ فضا تیار کر دیتی ہے، خدا کا تخت سجا دیتی ہے۔ پرستش ایک پینٹنگ کی طرح ہے۔ اگر پینٹر کالا رنگ استعمال کرے تو جو سکرین ہے کالی ہو جائے گی، سفید کرے سفید ہو جائے گی۔
प्रस्तिश भी ऐसे ही है। ऐसे गीत जिनका ताल्लुक बाइबल से नहीं, आप गाएं, कलाम सुनाना मुश्किल हो जाएगा, बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। और ऐसे गीत जो कलाम के ऐन मुताबिक है, बल्कि कलाम जिस तरह से यहां पे हुआ, सबने कलाम गाया है। तो कलाम गाया जा रहा था, तो फिर कलाम उतरेगा क्यों नहीं? मुश्किल नहीं होगी, आसानी होगी, कलाम उतरेगा, कलाम सबको सैराब करेगा। मुझे मौका मिला, मैं दुबई गया, अभी परसों मुझे सऊदीया जाना है। आज की इबादत की वजह से मैंने अपनी टिकट 22 तारीख की दी थी। मुझे रियाद, अल-हासा, जुबैल, दमाम, जद्दा, इन शहरों में मुनादी करनी है। पिछले साल भी की, उससे पिछले साल भी की, और खुदावंद को जलाल दिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे इलाके में, अपने इलाके में मुझे ये इज्जत मिलेगी। दुबई जब मुझे बुलाया जाना था, तो मैंने इंतजामिया से कहा, बुलाने वाले को प्लीज मेरा तारुफ नहीं करवाइएगा, मैं खुद अपना तारुफ करवाना चाहता हूं। उनके ज़हन में था कि बंदा कोई वड्डाई है, पता नहीं कोई लम्मा ही तारुफ है। मैं हाँ, लम्मा ही तारुफ है। उन्होंने कहा ठीक है जी। उन्होंने कहा जी पास्टर जी आएंगे और अपना तारुफ खुद करवाएंगे। मुझे मौका मिला, मैं बोला कि मैं रेवरेंड, डॉक्टर, बिशप नहीं हूं, मैं एक गुनहगार, यीशु के लहू से धुला उसका मुनाद हूं, उसका गवाह हूं, और आपके दरमियान यीशु के लहू से धुलकर उसकी गवाही देने आया हूं, उसका कलाम सुनाने आया हूं। अगर कोई कहे कि ये मजहबा अपनी तालीम के बलबूते पर वो हासिल करे, तो नाकाम रहेगा। अगर कोई चालाकी से, अगर कोई सियासत से इस मजहबा पे आने की कोशिश करे, तो अपनी कोशिश से वो करता रहेगा, लेकिन उसके साथ खुदा नहीं होगा। एक वक्त आएगा वो थक जाएगा और खत्म हो जाएगा, लेकिन जिसके साथ खुदा होगा, खुदा उसे इस्तेमाल करता रहेगा, खुदा उसे इस्तेमाल करता रहेगा, खुदा उसे गिरने नहीं देगा, खुदा उसे झुकने नहीं देगा। तो आज आपके सामने एक ऐसा शख्स खड़ा है जो 1994 में मरने के इंतहाई करीब था। नापाक बदरूहों का कब्जा था मुझ पर। मैं मौत के अंदर कब्र को देख रहा था कि मौजज़ा हुआ था। मुझे निकाल कर कब्र से यीशु ने ऊंची जगह पे खड़ा कर दिया था। यहाँ पे खुदा के खादिम पास्टर शौकत बैठे हैं, आप मेरे लिए दुआ भी करने आए थे। तो 10 कोड़ियों को शिफा मिली थी बाइबल में, उनमें से एक वापस आया था। तो यीशु ने कहा था वो 9 कहां हैं? एक जो वापस आया था, मैं वही हूं। मैं यीशु के कदमों में रहा। जब मुझे शिफा मिली तो मैंने कहा शाफी जो है शिफा देने वाला, अगर उसके दर्शन ना हो तो शिफा का क्या फायदा? 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल उम्र गुजर जाएगी, मर जाऊंगा, आखिर तो शाफी मिल जाए जिसने शिफा दी है, कंफर्मेशन हो जाए कौन है ये शाफी, कौन देता है ये शिफाएं। कहीं शैतान ने तो नहीं शिफा दे दी। धोखा ना खाइए, इब्लीस भी शिफाएं देता है, इब्लीस भी मौजज़े करता है। नहीं यकीन आता, मुकाशिफा की किताब पढ़ ले, 13 बाब 13 में भी आपको मिलेगा इब्लीस का मौजज़ा। वहां पे लिखा है कि मुखालिफे मसीह आसमान से आग नाजिल करेगा जमीन पर, और वो बुत में अपनी रूह फूंकेगा और वो बुत बोलना शुरू हो जाएगा। तो जो मौजज़ों के शदाई हैं, जो शिफाओं में घिरे हुए हैं कि शिफा शिफा खेल रहे हैं, वो तो फिर उसके पीछे चले जाएंगे। कलीसिया को कलाम की जरूरत है,
मैं इसलिए अपने आप को नीचा करता रहता हूं कि मुझे बाइबल में से एक आयत फार्मूला दिखाई देती है। लिखा है कि जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। अपने आप को छोटा बनाना बड़ा जरूरी है, अपनी नुमाइश नहीं। यीशु के जलाल के लिए काम शुरू कर दे। और लॉरेंस में मैंने देखा है बड़ी मेहनत कर रहा है, और सारे गीत इस तरह के गाने का मतलब ये है कि खुदा का इस पे हाथ है। लॉरेंस के लिए तालियां होनी चाहिए। मेरे साथ देखिए, मत्ती की इंजील उसका पहला बाब और 21 आयत से पढ़ेंगे। और खुदा के जिंदा बाबरकत कलाम में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गया इंजीली बयान, पहला बाब 21 आयत। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये वजह है यीशु के आने की। वजह क्या सुनी आपने? क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से रिहा करेगा, निजात देगा। अब 20 आयत पढ़े। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदा के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर। अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो कुछ उसके पेट में है वो रूहुल कुदस की कुदरत से है। क्योंकि जो कुछ उसके पेट में है रूहुल कुदस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। अभी समाप्त किया गया कि जो कुछ उसके पेट में है। इसके लिए जो यूनानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ वो है प्रोटोकोटोस, PROTOCOTOS, प्रोटोकोटोस, जिसके मानी है जो उसके पेट में रखा गया है, जो उसके पेट में रखा गया है। क्योंकि हमारी जुबान उर्दू की जो है ये ज़हाफत का शिकार है, ये बहुत सी जुबानों का मुरक्कब है। इस वजह से इसमें इल्हाम पूरा बैठ नहीं सकता। तो इसकी ज़हाफत जो है खत्म करने के लिए हमें यूनानी का और इब्रानी का सहारा इंतहाई जरूरी हो जाता है लेना। प्रोटोकोटोस, जो उसके पेट में रखा गया है। ये रखा क्या गया है? ये रखा जाना क्या है? मिसाल के तौर पर यहां पर ये पहले से काफी मौजूद है। मैं यहां से उठाता हूं और यहां पर मैं रख देता हूं। रखा इसलिए वहां पे गया कि काफी पहले से मौजूद थी। तो इसलिए यीशु रखा गया है कि वो पैदा नहीं हुआ, वो रखा गया है, वो पहले से मौजूद है। अब एक आयत और पढ़ते हैं जिससे पता चलेगा कि वो पैदा नहीं हुआ, उसके वसीला से सब कुछ पैदा हुआ है। यूहन्ना की इंजील देखिए, उसका पहला बाब पहली 2-3 आयत पढ़े, गौर कीजिए। पैदा का लफ्ज यीशु की शान के साथ जचता नहीं है, इतना कमजोर है कि यीशु के साथ ये ठहर नहीं सकता। लेकिन चूंकि हमारी जुबान, हम इसका हिस्सा हैं, तो हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन जरा इसको बाइबली अंदाज में देखते हैं। जी बेटे पढ़ो। खुदा के जिंदा पाक कलाम में से बेटे हाथ पढ़िए, सरल पढ़ो। यूहन्ना की इंजील पहला बाब पहली आयत। पढ़ना शुरू करो, इस तरह से नहीं। इब्तिदा में कलाम था, इब्तिदा में कलाम था, और कलाम खुदा के साथ था, और कलाम खुदा के साथ था, और कलाम खुदा था, और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था।
सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई। और जो रखा गया है, लेकिन इसके वसीला से सब चीजें पैदा हुई। ये कलाम मुजस्सिम हुआ है, ये कलाम उतरा है, ये तवल्लुद हुआ है, इसका ज़हूर हुआ है, ये आश्कार हुआ है, ये जलवागर हुआ है, ये रखा गया है। इसके वसीला से सब कुछ पैदा हुआ है, ये इब्तिदा से है। आगे जो कुछ पैदा हुआ, जो कुछ भी, यूं लिखा है, जो कुछ भी पैदा हुआ है, उसमें से कोई चीज भी, उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसके बगैर पैदा नहीं हुई। ये क्रिएटर है, ये इब्तिदा से है, ये वही है जो इब्तिदा में काम करता है और सुबह और शाम फिर दूसरा दिन होता है। ये वही है, ये आगाज से है। किसी ने सवाल किया, बेटे बस, किसी ने सवाल किया पास्टर डॉक्टर हिस्कियल सरोज से, खुदा कब से है? तो उन्होंने जवाब दिया, खुदा जब से है तब से है। क्या जवाब दिया? खुदा जब से है तब से है। ये इब्तिदा से है, आगाज इससे है, जिसके गिर्द सारी सदियां घूमती हैं, जिसके गिर्द सारे जमाने, हाल, माजी, मुस्तकबिल जिसको सिजदा करते हैं। हम उसे कौन सा दिन देंगे? वो एंकर पर्सन एक, उन्होंने कुछ बातें की 25 दिसंबर के हवाले से, कि वो कहते हैं कि 25 दिसंबर यीशु के आने का दिन नहीं है। ये सच है कि यीशु के आने का दिन 25 दिसंबर नहीं है। पूरी दुनिया में क्रिसमस सीजन सेलिब्रेट किया जाता है। नवंबर के आखिरी हफ्ते से लेकर जनवरी के पहले हफ्ते तक क्रिसमस सीजन मनाया जाता है। अलबत्ता हमारे इलाकों में 25 दिसंबर को सिर्फ क्रिसमस समझा जाता है। और क्यों पूरी दुनिया में क्रिसमस सीजन मनाया जाता है? उसकी वजह यह है कि यीशु की ये जो डेट है 25 दिसंबर, ये डिसाइडेड डेट है। बहुत सारे बिशप साहबान ने मिलकर फैसला किया था कि जब यीशु का ज़हूर हुआ था, उस वक्त आग ताप रहे थे गडरिए, उस वक्त सर्दी थी, झाड़े का मौसम था, ठंड थी और इंतहाई ठिठुरने वाला मौसम था। तो आज वो जो मौसम होता है, वो नवंबर के आखिरी हफ्ते से लेकर जनवरी के पहले हफ्ते तक का जो मौसम है, वो उसके मौसम को मैच करता है। और जो 25 दिसंबर डिसाइड की गई, ये इसलिए की गई कि ये डेट इंतहाई बुर्दबारी से इसको डिसाइड किया गया, इसलिए कि पूरी दुनिया में जितने मसीही हैं, वो यीशु के जाहिर होने का एक दिन एक जान होकर, यक जान होकर मना सके और पूरी दुनिया इसमें शरीक हो। एक ही दिन सब इस बड़े जश्न का हिस्सा बने, इसकी तैयारी करें और इसको सेलिब्रेट किया जाए। इसको बाइबल टीचर्स, उनकी जुबान में कहा जाता है डॉगमालॉजी, यानी कि इल्हाम में गुंजाइश इस तौर से बनाकर कुछ चीजों को डिसाइड करना जिसमें इल्हाम डिस्ट्रॉय ना हो, जिसमें सब एक जगह पे हो। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्यों यीशु के आने का किसी को पता नहीं? तो जवाब फिर वही है। किसी ने पूछा कि खुदा कब से है, तो जवाब मिला वो जब से है तब से है। यीशु की तारीख का पता ना होना इस बात का सबूत है, दलील है कि ये खुदा है, क्योंकि खुदा कब से है किसी को मालूम नहीं, यीशु कब उतरा किसी को मालूम नहीं। ये उसके खुदा होने की एक और दलील है। वो जिंदा खुदा है जो
डिसाइड किया गया दिन, ये बड़ी समझ और बड़ी ताकत और बड़ी अकल के साथ फिर सब हम मनाते हैं, बल्कि आइंदा 25 दिसंबर को और कुव्वत से मनाएंगे। बिद्दतें मुखालफत करें या बिद्दतें आपकी रुकावट बने, आपको डिस्ट्रॉय करने के तरीके ढूंढें, उनकी गलतफहमी का शिकार नहीं होना। हमने सीखना है, समझना है कि बुजुर्गों ने क्यों डिसाइड किया था। इसलिए किया था कि हम सब एक प्लेटफॉर्म पे जमा होकर यीशु के ज़ाहिर होने के दिन को मना सके, इसका जश्न कर सके। अब जश्न क्यों करते हैं? वजह आगे लिखी है, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु। जब इस खित्ते में ट्रांसलेशंस हो रही थी बाइबल की, तो उस वक्त लफ्ज जीसस, क्योंकि इंग्लिश से बाइबल उर्दू में ट्रांसफर हुई है, ट्रांसलेशन हुई है, तो लफ्ज जो जीसस है इसका तर्जुमा होना था। तो बाइबल टीचर्स ने इस लफ्ज के तर्जुमे के लिए इंतहाई अकल और फहम और समझ का सबूत दिया। उन्होंने लफ्ज यीशु जो चुना, इस यीशु लफ्ज के दो हिस्से हैं, या और सु। खुदा के 3 शख्सी नाम है, एदोनाई, यहोवे और एलोही। यहोवे को हम यहोवा कहते हैं। हम तो हमारी मौज लगी हुई है, हम गीत गाते हैं यहोवा 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 यहोवा, एक ही सांस में 5 दफा 6 दफा यहोवा कह दिया। यहूदी लोग यहोवा नाम लेने से पहले तहारत करते हैं, वो अपना मुंह धोते हैं, वो इस नाम को बेजा नहीं लेते। वो कहते हैं ये नाम इतना पाक है कि हमारे गंदे लब, हमारी गंदी जुबान, हमारा गंदा मुंह इसको अदा करने के लायक नहीं। इसलिए इस्तेमाल होता था इब्राहिम का खुदा, इसहाक का खुदा, याकूब का खुदा। वो यहोवा कहने से इसलिए कतराते थे। तो हमारी बहरहाल मौज है, हम यहोवा कहते हैं, बड़ी बेबाकी से कहते हैं, और हमारी समझ के मुताबिक उनकी समझ अपनी जगह बड़ी अच्छी है, लेकिन हमारा जो कल्चरल सिलसिला है इसमें अपनी मोहब्बत है। यहोवा का पहला लफ्ज या लिया गया और इसके साथ दूसरा लफ्ज सू लिया गया। या के मानी खुदा के हैं और सू के मानी छुड़ाने वाले के हैं। तू उसका नाम यीशु रखना, यानी तू उसका नाम खुदा छुड़ाने वाला रखना। खुदा छुड़ाने वाला उतरा है। आगे लिखा है क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। नाम खुदा छुड़ाने वाला, काम फिर आजाद करना। जैसा नाम वैसा काम, जिस तरह का नाम होगा उस तरह का अगर काम भी होगा तो फिर नाम के मुताबिक बड़ा शानदार काम होगा। तो यीशु ने आजाद करने के लिए जो अमल किया है, उसके आने की जो वजह है, इसको जरा बारीक बीनी से आज देखेंगे। मैं सियालकोट में कलाम सुना रहा था, तो वहां पर कलाम सुनाते सुनाते गुजरात के लिए कलाम उतर रहा था कि ये वाला थॉट पेश कर देना। हैरान था मैं कि ये किस तरह की गुफ्तगू है कि मैं कलाम सुना रहा हूं और साथ में गुजरात की तैयारी पाखरू दे रहा था कि यहां पे बोल देना, इस तरह से कह देना, ये है वजह। तो वो थॉट ये था जो मुझे सियालकोट में मिला कि बड़ा दिन जो हम कहते हैं, बड़ा दिन, क्या जबरदस्त इस सेलिब्रेशन को लफ्ज दिया बाइबल टीचर्स ने, बड़ा दिन। लेकिन किन किन का बड़ा दिन, मगर किन किन का। मैं हैरान था कि मैं तो कलाम पेश कर रहा हूं और साथ में अगला सबक आ रहा है कि बड़ा दिन किन किन का। बड़ा दिन
अगर है तो बड़ा दिन साबित हो तो फिर ये बड़ा दिन है, वरना ये भी दूसरी ईदों की तरह ये ईद होगी। लेकिन अगर ये वाकई बड़ा दिन है तो मैं कौन हूं साबित करने वाला? फिर कलाम साबित करे। मैं अगर साबित करूं तो ये गलत बात है, ये झूठ हो सकती है। लेकिन अगर लिखा हुआ जो बाइबल में हजारों साल पहले लिखा गया, जो ला तब्दील है, जो ला खता है, जो ला मुतनाही है, अगर कलाम इस दिन को बड़ा साबित करे तो फिर तो हमें मानना पड़ेगा कि बड़ा दिन वाकई बड़ा दिन है। चलिए मेरे साथ देखिए मत्ती की इंजील, बल्कि आप लूका देख लें, ये सारी अनाजील में है। लूका गालिबन उसका 23 बाब है। लूका की इंजील मुबारका ये लूका तबीब ने लिखी है। इसको गौर करेंगे, अपनी त्वचा ना डिस्ट्रॉय होने दे। बड़ी कीमती बात है। ये बड़ा दिन जो नाम दिया गया कलाम से देखते हैं। आप अगर इसको पढ़ें वर्स 39 से 39, फिर जो दो बदकार, जी बेटे पढ़ो, आप माइक अपने पास गौर कीजिए। उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा, फिर जो दो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे, कि क्या तू मसीह नहीं? हाँ, तू अपने आप को और हमको बचा। तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से नहीं डरता? अच्छा, दूसरा डाकू जो है ये समझदार था। मैं भी अपनी जात में डाकू था, मेरा बिजनेस था, मैं मोटरसाइकिलें बेचता था। ये डाकू मुझे बड़ा पसंद है क्योंकि इसमें से मुझे अपनी तस्वीर दिखाई देती है। ये डाकू कहता है क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? अगली इस आयत की जो कनेक्टिविटी है, अगला इस आयत का जो हिस्सा है, वो पिछले हिस्से की तस्दीक देगा कि ये किसे खुदा कह रहा है। क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? आगे, हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है। हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है। तो उन दोनों के साथ कौन था उसी सजा में गिरफ्तार? इन दोनों के साथ, हेलो जवाब दें, इन दोनों में से, इन दोनों के साथ तीसरा कौन था इन दोनों के दरमियान जो मसलूब हुआ था? यीशु मसीह। यीशु। तो क्या कह रहा है? तो खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है। क्या कह रहे हैं? हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार। तो किसको ये खुदा कह रहा था? सलीब पर ये यीशु को खुदा कह रहा था। बहुत से लोग हैं जो शिफाओं के पीछे भागे फिरते हैं। इस डाकू से सबक हासिल करें। करब की हालत में है, मरने के करीब है, मौत इस पे चढ़ी हुई है, लेकिन क्या कह रहा है? यीशु को खुदा कह रहा है। कभी आपने सुना है कि जब वो मरने लगा तो उसने बड़े झूठ बोले? मरता शख्स बड़े झूठ बोलता है कि सच के सिवा कुछ नहीं बोलता। मरता शख्स अगर उसके नजदीक बड़ी कोई कीमती बात होती है तो वो ये होती है कि वो सच बोलता है। तो ये मरने के करीब सच बोल रहा था। क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है। इसने यीशु को सलीब पर खुदा जाना है। इसने मौत जो जिस्म की थी उसकी तरफ निगाह नहीं की। इसने आसमान से उतरने वाले यीशु को, उसके मुकाशिफे को पा लिया, यीशु को खुदा जान लिया। ये बड़ी बात है कि ये मुकाशिफा मुझ पर और आप पर खुल जाए कि हम यीशु को खुदा जान लें। ये बड़ी बात है कि उम्मतें और कौमें इस मुकाशफे को पा जाएं। ये बड़ी बात है कि हम जहां पे रहते हैं वहां पर हमारे इर्द गिर्द का सारा माहौल यीशु के इस बड़े ओहदे को समझ जाए कि वो खुदा है। ये डाकू मरते हुए एक बड़ी सच, एक बड़े सच को
बयान कर रहा है। आगे क्या लिखा है, गौर करेंगे। और हमारी सजा तो वाजिबी है, हमारी सजा तो वाजिबी तो वाजिबी है, क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं। तौबा के 3 हिस्से हैं और चौथा निजात का दरवाजा खुलना है। नंबर 1 एहसास गुनाह, नंबर 2 इकरार गुनाह और नंबर 3 तर्के गुनाह। फिर दरवाजा खुलेगा निजात का, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से। क्रिसमस चरनी के अंदर के बड़े यीशु का वो जो हम सजा देते हैं, गुड्डा रख देते हैं छोटा सा, वहां तक नहीं है क्रिसमस। क्रिसमस चरनी से लेकर सलीब तक आता है। क्यों आता है, अभी चल के देखते हैं क्यों सलीब तक ये पहुंचता है। क्रिसमस सलीब से होता हुआ कब्र में उतरता है और कब्र से होता हुआ आसमान तक चला जाता है। क्रिसमस ना कभी खत्म होता है एक ईमानदार का, ना कभी खत्म होगा और ना ही खत्म हो सकता है। ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी, एक ईमानदार का क्रिसमस चलता ही रहता है। ये लामतना ही सिलसिले का नाम है। हमारी सजा तो वाजिबी है, इकरार कर रहे हैं। इकरार से पहले एहसास उतरा है, उसने एनालाइज किया सलीब पर कि हम गुनहगार हैं और इकरार किया हमारी सजा तो वाजिबी है, मगर इसने कोई बेजा काम नहीं किया। वाहिद यीशु की जात है जिसका दावा है, तुम में से कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है। अध्यान, मज़ाहिब, मसालिक, फिरके सब खामोश हैं। अंबिया असगर, अंबिया अकबर, कोई नबी, कोई वली, कोई बड़ा शख्स ये दावा नहीं कर सका। ये दावा सिर्फ मेरे और आपके यीशु ने किया है, जो खुदा का बेटा, खुदा का कलीमा, खुदा का कद्दूस, खुदा में से आया और खुदा में से निकला, उसकी जात का नक्श, उसकी जात का परताव, वो ये दावा कर सकता है। वो कलमा खुदा ये दावा कर सकता है, क्योंकि खुदा में गुनाह नहीं हो सकता। ये किस तरह का खुदा होगा जिसमें गुनाह हो? तो फिर कौन साबित करेगा? ये दावा भी यीशु के खुदा होने का सबूत है। ये दावा यीशु की खुदायत का सबूत है, क्योंकि खुदा पाक है। तो ये डाकू एक तो कह रहा है खुदा यीशु को, दूसरा इस दावे की तस्दीक कर रहा है कि इसने कोई बेजा काम नहीं किया। हमारी सजा तो वाजिबी है। आगे पढ़ो बेटा, गौर कीजिए। फिर उसने कहा, ए यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। ओ माय गॉड, ये सलीब पर खुद मर रहा है, लेकिन भेद क्या खुला है कि ये मरेगा, लेकिन मारकर, मौत को मारकर, कब्र को, कफन को, पाताल को, इब्लीस को शिकस्त देकर अपने दावे के मुताबिक अपनी बादशाही कायम करेगा। तो सलीब पर कह रहा है, यीशु के जी उठने का ऐलान कर रहा है, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। ओ पादरी साहब, डाकू कमाल दा जे, एनू मिलना पैगा, जो जावांगे लबांगे डाकू साहब, कितों हिकमत पाई जे, मरदे पैसी जे, ते की ताड़े दे पेट खुल गए, किवें यीशु नू खुदा जान लिया, किवें अपने लिए राह तैयार कर ली, किवें इकरार कर लिया सलीब ते। कहता है जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। ये कहने से पहले अपने गुनहगार होने का इसने ऐलान किया है कि मेरी, हमारी सजा तो वाजिबी है, मगर इसने कोई बेजा काम नहीं किया। साथ ही फिर अपनी इल्तिजा कर दी, फिर साथ ही अपनी रिक्वेस्ट रख दी कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। तो यीशु ने क्या कहा?
اس نے اس سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. میں تجھ سے سچ کہتا ہوں تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. یہ ڈاکو کا بڑا دن شروع ہوا ہے. یہ بڑا دن ہے ڈاکو کا. فردوس کے لیے گیت لکھا. لکھنے والوں نے مایوسی وہاں نہیں, خوف وہاں نہیں, دھوپ وہاں نہیں, روشن ہے سب کچھ. چار سو ہر چیز, ہر وقت, ہر لمحہ روشن ہے وہاں پر. وہاں پر نہ رات ہوتی ہے, نہ شام ہوتی ہے, نہ اگلا دن, بلکہ ہر وقت چار سو روشنی ہے, نور ہے, تسلی ہے, شادمانی ہے. رونا وہاں نہیں, آنسو وہاں نہیں, بھوک وہاں نہیں, دھوپ وہاں نہیں. روشن ہے سب کچھ اس کے جلال سے. چار سو. تو یسوع نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. یہ اس کا بڑا دن ہے, ایک گنہگار کا بڑا دن. سادھو سندر سنگھ نے ایک کتاب لکھی, مسیح یعنی ہم مسیحی بغیر مسیح کے اور غیر مسیحی مسیح کے ساتھ. یعنی کہ ایسے لوگ جو اعلانیہ مسیحی نہیں ہیں لیکن وہ مسیح کے ساتھ ہیں. یہ ان کی کتاب کا عنوان تھا, ٹائٹل تھا, مسیحی بغیر مسیحی کے. یعنی کہ کچھ نامی مسیحی یسوع کے بغیر اور کچھ غیر مسیحی یسوع کے ساتھ. یہ اس کا مطلب تھا. تو ڈاکٹر بلی گراہم وہ کہتے ہیں اگر کوئی گراج میں پیدا ہو تو گراج میں پیدا ہونے کی وجہ سے وہ کار نہیں بن جاتا. اگر کوئی ٹرین میں پیدا ہو تو ٹرین میں پیدا ہونے کی وجہ سے وہ ریل گاڑی نہیں بن جاتا. اگر کوئی پلین میں پیدا ہو, ایروپلین میں, تو ایروپلین میں پیدا ہونے کی وجہ سے وہ ایروپلین نہیں بن جاتا. وہ کہتے ہیں اگر کوئی مسیحی گھرانے میں پیدا ہو تو پیدا ہونے کی وجہ سے وہ مسیحی نہیں بن جاتا. مسیحی بننے کے لیے اس ڈاکو کی تعلیم دیکھیے, اس کی سمجھ دیکھیے. اس کا بڑا دن شروع ہوا ہے اور دیکھتے ہیں بڑا دن کس کس کا ہے. او مائی گاڈ, یہ آپ کو بڑا مزہ دے گی بات, آپ کو بڑی سمجھ دانش دے گی. دیکھیے متی کی انجیل اس کا 27 باب اور اس کی 50 آیت سے غور کریں گے. بائبل کا خدا, بائبل میری سچی ہے, وعدوں کی یہ پکی ہے. بائبل جان سے پیاری ہے, اس کا ہر ایک سخن نرالا ہے. بائبل قدموں کا چراغ, راہوں کا اجالا ہے. سونے کی کٹوری ہے, سونے کا پیالہ ہے. او واہ جی, دیکھیے غور کرنا ہے آپ نے. میں تو اس پہ شور کروں گا کیونکہ میرے اندر بڑی خوشی ہے بڑے دن کی. مجھے پتا ہے میرا بڑا دن کیا ہے. میں آپ پر اپنے بڑے دن کو بتانا چاہتا ہوں. اب ڈاکو کا تو دیکھ لیا بڑا دن جو شروع ہوا ہے, تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. فردوس میں کوئی رات شام کوئی نہیں. تو اگر رات شام نہیں تو پھر بڑا دن آسمان پہ چلا گیا نا, یہ زمین پہ ہے. بڑا دن زمین سے لے کر آسمان تک جاتے ہیں. چلو یہ ذرا ایک اور بڑا دن دیکھتے ہیں. بیٹا پڑھو. او پتر 50. یسوع نے پھر بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی. اچھا, یسوع نے صلیب پر جان جب دی تو پھر آگے کے کام دیکھیے. یسوع نے پھر بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر, اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا. کیونکہ یسوع اوپر سے تھا, پردے نے اوپر سے پھٹنا تھا. یہ انسان اور خدا کے درمیان حائل ناراضگی کی دیوار تھی. جان دیتے ہی ناراضگی ختم. صلح کا چیپٹر شروع ہوا ہے. آگے اور زمین لرزی, چٹانیں ترکی اور قبریں کھل گئی, اور قبریں
खुल गई और बहुत से जिस्म ये जो कब्रें हैं ये देखिए ये खुल गई हैं। कोई 5000 साल पहले मरा हुआ है, कई 2000 साल पहले, कई 4000 साल पहले, कई 100 साल, कई 200 साल, कई 50 साल पहले यीशु के आने से कफारे से पहले की कब्रें, ये ईमानदारों की कब्रें कफारा होते ही खुल गई हैं। वो कोई 50 साल या 100 साल से कैद हो तो उसे आजाद कर दिया जाए तो उसे आजादी कैसी लगेगी, कैसी लगेगी? कोई फिर उससे पूछे जिसे 5000 या 4 साल या 3000 साल हो गए थे कब्र में, तो था ईमानदार लेकिन था कब्र में क्योंकि अदायगी कफारा नहीं हुआ था, गुनाह का फिदिया नहीं हुआ था। तो जैसे ही फिदिया दिया गया, यीशु अभी स्लीप पर है, उतारा भी नहीं गया स्लीप से, तो कब्रें खुल गई, आजाद मुकद्दसीन हो गए। जो मरे हुए थे उनकी कैद खुल गई। तो उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। निजात कब्र से मिल गई, निजात गुनाह से मिल गई, रिहाई, मखलसी, छुटकारा, आजादी फिदिया होते ही मिल गई और कब्रें खुल गई। अगला हिस्सा पढ़ो बेटे, इंतहाई छोटा और ताकतवर हिस्सा। और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे। हाँ, बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो खुदा पर ईमान रखते थे, जो यहोवा एलोहीम और अदोनाई के मानने वाले थे, वो जो सोए हुए थे बाइबली टर्मिनोलॉजी में, जो मुझ पर ईमान रखता है वो मर जाए तो भी, आओ हमारा दोस्त लाजर सो गया है, ये मरी नहीं बल्कि सो रही है। ये मुकद्दसीन सोए हुए थे, यानी हमारी जुबान में, हमारी टर्म में मरे हुए थे, अब ये जिंदा हुए हैं। कब्रें खुल गई हैं, कैद टूट गई है, कब्रें खुल गई, यीशु सलीब पर है, फिजा दिखाई दे रही है, परिंदे, आसमान, सितारे, सूरज, सब कुछ दिखाई देना शुरू हो गया। कई हजार साल नहीं देखा कुछ भी, अब सब कुछ दिखाई दे रहा है फिदिया होते ही। तो आगे क्या लिखा है? और उसके जी उठने के बाद, उसके जी उठने के बाद यानी कब्रें खुल गई, अभी स्लीप पर ही है। उसके जी उठने के बाद यानी कि दफनाया गया, फिर तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा, यानी 3 दिन तक खुली कब्रों से नजारा तो देख रहे हैं लेकिन बाहर नहीं निकले, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वो जी उठने वालों में से पहलौठा है। लाजिम था कि पहलौठा बाहर निकले, वो पहले जी उठे, वो लीड करे, वो आगे चले। तो मुकद्दसीन, उसके मानने वाले, इस कफारे के नीचे आने वाले, सलीब से बहती धार से फायदा लेने वाले उसके पीछे निकले। बहुत से मुकद्दसीन उसके जी उठने के बाद आगे कब्रों से निकलकर मुकद्दस शहर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। अब बाहर निकल गए। ये इनका बड़ा दिन है। मुर्दे कोई ईद मनाते हैं, बताएं तो बाइबल कह रही है मुर्दे बड़ा दिन मनाते हैं, इनका बड़ा दिन शुरू है। अब कैद कोई नहीं है कब्र की, अब अंधेरा कोई नहीं है, पताल का खौफ नहीं है, पताल की दहशत नहीं है। अय्यूब कहता है 10 बाब उसकी 11-10-11 आयत में कि मैं ऐसी जगह जाने वाला हूं जहां से फिर ना लौटूंगा। वहां बड़ा गुप्त अंधेरा है, वहां तीरगी को यानी कि अंधेरा अंधेरे को जन्म देता रहता है, इतना अंधेरा है वहां पे। अय्यूब बाहर निकला है, अब्राहम बाहर निकला है, इसहाक, यूसुफ, दाऊद सब बाहर निकले हैं। ये मुकद्दसीन, इनका बड़ा दिन शुरू हुआ है। ये बड़ा दिन मेरा और आपका नहीं है सिर्फ, ये जब सोशल मीडिया पर जाएगा ये पैगाम तो मैं
सुनने वालों को, देखने वालों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि ईमान लाइए और इस बड़े दिन में शरीक हो जाइए, क्योंकि बड़ा दिन जिंदों का भी है और मुर्दों का भी। ये जी उठे हैं, इस बड़े दिन में शरीक हुए हैं, तो उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये इनका बड़ा दिन है। अब हम अपना बड़ा दिन देखते हैं बाइबल में कि हम कोई क्यों मनाते हैं। अगर नहीं मिला मुझे, क्या आपको अगर समझ ना आई, तो फिर कोई जरूरत नहीं मनाने की। वो कहते हैं ना पंजाबी में, पांदा हर कोई है, टमकांदा कोई कोई है। सुनियो ये ना बात, ऐश्वर्य बड़ा दिन आप टमकाइए बाइबल समझ के। हाँ, अपना बड़ा दिन तो बाइबल च लभी है ना। बुजुर्गों ने एवं नहीं इसको बड़ा दिन कह दिया, बुजुर्गों ने एवं नहीं यीशु के आने के दिन को डिसाइड कर दिया। ये एक बड़ी बशारत है, ये एक बड़ा मुकाशफा है। इसी बाब में जब हम आगे थोड़ा देखें तो 57 आयत जो है ये पढ़े, हमारे बड़े दिन का भी यहाँ पे आपको मौजू मिलेगा। जी पढ़िए। जब शाम हुई तो यूसुफ नाम अरमितिया का एक दौलतमंद आदमी आया, जो खुद भी यीशु का शागिर्द था। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु की लाश मांगी। रुको बेटे, अच्छा ये अजीब बात नहीं है कि मुर्दे कहाँ जाते हैं कब्रिस्तानों में, लेकिन यीशु की लाश बादशाह के पास पहुंचा दी गई है। क्यों? क्योंकि यीशु की कब्र मौजूद नहीं थी, क्योंकि यीशु को अदालत ने सजा नहीं थी दी। ये फरीसियों ने, फकीयों ने हरी भरी में यीशु को मसलूब कर दिया और 6:01 पर सबत शुरू होना था। उन्हें यह भी जल्दी थी कि कब्र तो निकाली नहीं जा सकती इतनी जल्दी, तो गवर्नमेंट से मदद ली जाए, बादशाह से मदद ली जाए, अदालत से मदद ली जाए, क्योंकि अदालत अगर सजा दे तो अदालत के लिए उस वक्त के कानून के मुताबिक लाजिम था कि सजा अदालत दे मौत की, तो कब्र भी अदालत दे। तो वो पहले तो उसके पास जाके मिन्नत तरला कर रहे थे कि अगर सबत से पहले हमारी तारीख रात 12:01 पे बदलती है, लेकिन यहूदी कैलेंडर शाम 6:01 पे तब्दील होता है। यानी जुम्मे का दिन था, तकरीबन 3 बजे यीशु ने जान दी, तो ये सारा माजरा होते होते घंटा फिर गुजर गया, तो तकरीबन 4, सवा 4 का टाइम था, 4:30 का। तो उन्हें मुसीबत ये थी कि अगर सबत शुरू हो गया तो लोग हमसे खफा होंगे, यीशु को लोग बड़ा नबी जानते हैं, तो हमें लोग मारेंगे, हमारे खिलाफ हो जाएंगे, हमारी तालीमात के पीछे नहीं चलेंगे, हमारे पैरों नहीं रहेंगे। तो इसलिए वो पहला तो उसकी मदद ले रहे थे, और पहला तो उसने उन्हें कब्र नहीं था दे रहा, क्योंकि अगर पहला तो उसका कब्र दे देता तो फिर लोगों पे एक मैसेज जाना था कि यीशु गुनहगार था, क्योंकि अदालत ने कब्र दी। फटा ये चल रहा था। मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, मुझे पढ़ाया गया है पढ़ाने के लिए। तो एक शख्स नमूदार हुआ जो खुद भी यीशु का शागिर्द था। उसने जब लाश मांगी तो पहला तो उसने किसी से मशवरा नहीं किया, फौरन लाश दे देने का हुक्म दिया कि दे दो इस शख्स को लाश, ताकि ये मसला हल हो, कब्र में पहुंच जाए ये लाश। तो जब ऑर्डर हो गया, गौर करें इसका ताल्लुक मेरे और आपके साथ है, अभी साबित होगा। जी बेटा आगे क्या लिखा है, गौर करें। और यूसुफ ने लाश को लेकर साफ महीन कतानी चादर में लपेटा, और यूसुफ ने लाश को लेकर साफ महीन कतानी चादर में लपेटा, और अपनी नई कब्र में, और अपनी नई कब्र में जो उसने चट्टान में खोदी थी रखा। प्रोटोकोटोस पेट में रखा गया है, पेट में रखा गया है, कब्र में वो रखा गया है। किसकी कब्र में? अपनी, यूसुफ की कब्र में। यूसुफ परिंदा था, जानवर था या इंसान था?
तो यीशु किसकी कब्र में उतरा है? इंसान की कब्र में। अगर यीशु की कब्र होती तो यीशु कैसा खुदा है जिसकी कब्र मौजूद है? खुदा की कब्र नहीं हो सकती, क्योंकि मौत खुदा पर गालिब नहीं आ सकती, इसलिए खुदा की कब्र हो ही नहीं सकती। इसलिए यीशु की कब्र ना थी। यीशु यूसुफ और मत्तिया एक इंसान की कब्र में उतरा है। अगर गौर करें तो अगर उसकी कब्र होती तो ये तो अजीब बात है, ये तो अजीब मामला है। ये तो ऐसी बात है कि किसी ने कहा पादरी साहब पादरी साहब हलवा पक गया है। तो पादरी से गौर करें केक को ना देखें। ये आखिरी बातें हैं, कलाम इस तरह से समझ नहीं आएगी। गौर करें, किसी ने कहा पादरी साहब हलवा पक गया है। पादरी साहब ने समझा क्या कह रहा है, साढ़े घर हलवा पक गया है। पादरी साहब कहते सानू की, कहते नहीं पादरी साहब ताड़े हल पक्या है, कहते फिर तानू की। अच्छा, जे यीशु आपदी कब्र खोल के चला जाए तो फिर सानू की। ओदे एक ताकतवर शख्सियत सी, ओदे एक जोरावर शख्सियत सी, ओदे मुर्दियां नू जिंदा करदा सी, तो फिर अपनी भी तो कब्र खोल ही सकता है ना। लेकिन अगर वो इंसान की कब्र खोल के जाए तो फिर सानू है। क्यों? कि वो कब्र इंसान की खुली है, वो इंसान की कब्र में उतरा है, इंसान की कब्र में वो रखा गया है। अलामती तौर पर जो कब्र यरूशलेम में है वो यीशु की है, लेकिन असल में वो कब्र यीशु की नहीं थी। वो कब्र यूसुफ और मत्तिया इस दौलतमंद आदमी की थी, एक इंसान की थी। और वो कब्र आज के मैं और आप इंसान है। वो कब्र आज के यूसुफ और मत्तिया मैं और आप हैं। ये कब्र उसने इंसान की खोली थी, वो आजाद करने के लिए उतरा था। यार ऐ वाले काम नू छड़ दियो यार, ताड़ी मेहरबानी यार, प्लीज लारेंस बेटा मान लो बेटा, खुदा आपको बड़ी बरकत देगा। उधर केक भी इतने असी भी हैं ना। खुदा ने हर ना तो ज्यादा इज्जत अपने कलाम को दी है। खुदा अगर इज्जत अपने कलाम को देता है तो हम क्यों नहीं देते? इसलिए तो फिर हमारी हालत ये रहती है। कितना अहम पॉइंट है और केक के नजर हो चला है। गौर कीजिए, यीशु अपनी कब्र में नहीं उतरा, वो यूसुफ और मत्तिया एक इंसान की कब्र में उतरा है। वो इंसान की कब्र को खोलकर कब्र, मौत, खौफ, दहशत, कफन सबको हराकर इब्लीस को शिकस्त देकर जी उठा है। उसने मेरी और आपकी कब्र खोली हुई है। हम कितने खुशनसीब हैं कि मरने से पहले हमारी कब्र खुली हमें दिखाई दे रही है। लेकिन बाइबल की समझ आए तो वो कब्र मेरी और आपकी है और अलामती तौर पर वो यीशु की है। लेकिन अगर बाइबल की समझ ना आए तो फिर ये कब्र मुझ पे धंधनाएगी, ये कब्र मुझ पे बंद रहेगी, ये कब्र मुझ पे खौफ का निशान रहेगी। अगर मैं देखूं रूहानी आंखों से तो मुझे कब्र, कफन, पताल इसका कोई खौफ नहीं, क्योंकि मेरी कब्र पहले से खुली हुई है। ये मेरा बड़ा दिन है, ये आपका बड़ा दिन है कि कोई मौत का खौफ नहीं। ये बड़ा दिन मेरा और आपका, ये बड़ा दिन मरे हुओं का जो जिंदा किए गए, और ये बड़ा दिन गुनहगारों का जो उसे कबूल कर लें, उसके कफारे को समझ जाएं। बाइबल में लिखा है सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की। तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये मुकम्मल बड़ा दिन है। क्या आप निजात पाए बगैर बड़ा दिन मनाना चाहते हैं? तो फिर आपकी हालत ये है
बगाने की शादी अब्दुल्ला दीवाना है। मैंने पिछले दिनों एक शादी देखी, कोई इतनी खास रिश्तेदारी नहीं थी, तो कुड़ी दुल्हन तो भी पौधा तैयार हो गया। ए जे अब्दुल्ला दीवाना तलक भी कोई नहीं, ते जे रसू नाल तलक कोई नहीं, ओंदे लहू नाल निजात नाल रिहाई नाल तलक कोई नहीं, ते फिर अब्दुल्ला ही आ सी। हाँ असी लब दे रहे खुदा नू, सच्चे मुर्शद दी दरगाह नू, असी लब दे रहे खुदा नू, सच्चे मुर्शद दी दरगाह नू। असी मंदिर जा खलोते, उथे मैले हिरदे तोते, असी गुरुद्वारे चले, उथे रह गए कलम खले, असी जा वड़े मसीते, उथे ठंडे पानी पीते, गिरजे दियां टलियां बचियां, असी सच्चियां रावां मलियां। असी अंदरों कुंडी लाली, असी अंदरों कुंडी लाली, उन्हें बाहरों चाती पाली। रब आपी सानू लभ्या, साडा नंगा पिंडा कचिया, असी लब दे रहे खुदा नू, सच्चे मुर्शद दी दरगाह नू। यीशु का इस दुनिया में आना उसका प्यार है, और इस प्यार का इजहार उसका सलीब पर चढ़ जाना है, और कब्र को, पताल को, इब्लीस को शिकस्त देकर आसमान पर चले जाना उसका कमाल है। इस दुनिया में आना, प्यार, सलीब पर चढ़ जाना, इजहार, और मौत का बंद खोलना उसका कमाल है। ये बड़ा दिन आप सबको मुबारक हो, आप सबको मुबारक हो। प्रेज़ लॉर्ड। असी बड़ा दिन मनावांगे ते नाले टमकावांगे, ओंदे लहू नाल धोप के, अपने गुनाहां दा इकरार करके। जिवें डाकू ने क्या, हमारे गुनाह तो वाजिबी हैं, मगर इसने कोई बेजा काम नहीं किया। वो उतरा है, गाते हैं ना, यीशु उतरा है यहाँ, गाएंगे गाएंगे हम गाते जाएंगे। वो तवल्लुद हुआ है, वो आश्कार हुआ है, उसका ज़हूर हुआ है, वो रखा गया है। प्रोटोकोटोस, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, और कलाम ही खुदा था। खुदा छुड़ाने वाला उतरा इसलिए कि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात दे। हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और थोड़ी देर के लिए सोचेंगे हम कहाँ खड़े हैं। ये कलाम इसलिए हुआ है कि प्रस्तिश ने सेज सजाई हुई थी। ये कलाम इसलिए उतरा है कि पेंटर ने पेंटिंग बड़ी की हुई थी। प्रस्तार एक पेंटर होता है, प्रस्तार ने महफिल सजाई हुई थी कि आ जाए दुल्हा, और दुल्हा यानी कलाम उतरा है। तो वो यहाँ मौजूद है जो आज बड़ा दिन वाकई ही इसमें शरीक होना चाहता है। सोचे कि वो कहाँ खड़ा है, मैं कहाँ खड़ा हूँ। अपना एनालाइज कीजिए, एनालिसिस कीजिए, अपना मुहासबा कीजिए, अपना देखिए कि मैं क्या करता हूँ, क्या करती हूँ, मैं किसको सिजदा करता हूँ, किस तरह से सिजदा करता हूँ, मैंने यीशु को किस तरह से समझा। अब वो है क्या? वो तो खुदा है। हम कहाँ खड़े हैं? कौन चाहता है कि यीशु मेरे साथ ही जाए, मेरे घर कलाम मेरे साथ ही जाए, इब्लीस इस कलाम को चुराने ना पाए। अपने हाथ दिखाएंगे। कौन चाहता है कि अब के हम इस बड़ी ज़ियाफत का हिस्सा बन जाएं, इस बड़े दिन में शरीक हो जाएं। ओह प्रेज़ लॉर्ड, आपने हाथ नीचे कर लीजिए। बहुत से लोगों ने इस बड़े दिन में शरीक होने का अहद कर लिया। खुदाए कदूस, हम तेरी हजूरी में, तेरे फजल के तख्त के नीचे, तेरी कुदरत कामिला में इन अजीजों को जिन्होंने इकरार किया, जिन्होंने आज तेरे कलाम को नए दौर से सीखा, समझा और तुझे अपना दिल दे दिया, तुझे अपना मुनज्जी मुक्तिदाता जान लिया। ओ तेरी हजूरी में उठाते हैं कि तू इनका रहनुमा बन जा, कि तू
इनका खुदा बन जा, कि तू इन पर जलवागर हो जा, कि तू इन पर आश्कार हो जा, कि ये तुझसे बातें करने वाले बन जाएं, कि ये तेरी सुनने वाले बन जाएं, कि वो भेड़े बन जाएं जिनके बारे में लिखा है, अच्छी भेड़े अपने चरवाहे की आवाज खूब पहचानती हैं। ये तेरी आवाज को पहचानने वाले बन जाएं, ये तेरी कुर्बत पा जाएं, मौत के खौफ से रिहा हो जाएं, कब्र, कफन, पाताल इससे रिहाई पा जाएं, ये बड़े दिन में शरीक हो जाएं, जो बड़ा दिन ना कभी खत्म हुआ, ना कभी खत्म होगा। हम उस खुदा को सिजदा करते हैं जिसकी मानिद ना कोई था, ना है, ना होगा। हम उस खुदा को मुबारक कहते हैं और उस खुदा के हुजूर अपनी इल्तिजाएं रखते हैं। मैं खुदा के खुदाम के साथ मिलकर इन अजीजों को खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बरकत देता हूँ, यीशु नाम से आमीन, आमीन।
भाई साहब काफी है आप लोग और ये यूथ टीम की तरफ से इनको हार पहनाए जा रहे हैं। यूथ टीम की तरफ से इनको हार पहनाए जा रहे हैं। उसके बाद जितने खातम हैं और टीम की टीम और जितने भी पोजीशन है इन सबको अब हम हदिये के लिए और सारी बरकत के लिए मैं अमीन को कहूँगा वो सामने आएंगे। आसमानी बाप अब यीशु के नाम से तेरा शुक्रिया करते हैं जितने ने खुदा अपना हाथ बढ़ाया है, इनको बरकत दे। अब आप इनको बरकत दे, इनके पैसे पे, रोटी पानी पे, कि घरों पे खुदा तेरी बरकत आ जाए। तेरा शुक्र करता खाने को खुदा हम यीशु के नाम से पाक करते हैं। जब ये खाना खाया जाए तो खुदा कुव्वत और ताकत हासिल करे, तेरे जलाली नेक कामों में इस्तेमाल करे ताकि तेरा बेटा यीशु इनकी जिंदगी में जलाल पाए। तेरा शुक्र करता हूँ, आमीन। अब यहाँ के बाद रखिए, हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बातचीत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोजाना की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जों को माफ करते हैं, तुम्हारे कर्ज में माफ कर। मैं कुल बरसम चाह कि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तक तेरे रहेंगे, आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, जो कुछ की रफ़ात पे शराकत हमारे साथ दुनिया के तमाम ईमानदारों के साथ रहे, आमीन आमीन।